Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. From last two lecture we have studied about gravitation concept and we started with Newton's law of motion. हमने देखा कि न्यूटन ने जो 3 laws दिए हैं, right? We saw that in the first part. Then we studied about the circular motion and centripetal force, and then we studied about Kepler's law of motion, which is based on planetary motion, right? And I hope you are clear with all the 3 laws which I have covered in the last lecture. So today we will start with the theoretical part. Okay, so in the last lecture we started with this uniform circular motion and the magnitude of centripetal force, and हमने देखा था ये formula कैसे आया. Force is equal to mass speed square upon r, which is the radius of the circle. Okay, so what it is written here, we have seen earlier that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon a force. मतलब जब आप कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करोगे तो ही वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ इट विल रोटेट. ओके, एंड इट विल fall at the center of the circle. This we saw with the example of apple also. जो apple है वो कैसे गिरता है, it falls on center of the earth. Okay, and इसको ही हम क्या बोलते हैं, we call it as centripetal force. Okay, then we saw this formula which is given as F force is equal to mass then speed square upon radius of the circle. F is equal to mv square upon r. And one more formula which we studied was, see, now till now we have come up with 3 formulas. First one we saw was t cube, see, first formula which we saw was t square upon r cube is equal to k. This was the first formula. Second formula which we studied was F is equal to G m1 m2 upon d square, right? Mass of product of masses upon distance square, and G was the gravitational constant which was also called as constant of proportionality or universal gravitational constant. ठीक है, now you will see कि how you will calculate the distance. तो see, if a planet is revolving around the sun in a circular orbit in a uniform circular motion, तो जब sun revolve करता है, sun के आसपास जो planets revolve करते हैं circular motion में, तो क्या होता है, centripetal force acts on the planet towards the sun. Okay, remember this. Suppose this is the suppose यहाँ पे sun है. Okay, now दिस इज़ द सन. अब सारे जो प्लैनेट्स है इट विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, बट यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स. अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स वी स्टडीड इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, राइट? सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, रिमेंबर दिस मच. एंड टुवर्ड्स द सन मस्ट बी फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आपको कितना टाइम लगा है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने को, इज इक्वल टू स्पीड, मतलब उतनी आपकी स्पीड थी. ओके, सी, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, वेयर एम इज मास ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मास हो गया m, v हो गया उसका स्पीड, तो v इज स्क्वेयर. ओके, एंड r इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द centripetal force. Okay, the speed of the planet can be expressed in terms of period of revolution. Now अभी हमने एक फॉर्मूले में देखा था where we saw period of revolution as t, right? तो t as follows. See, the distance traveled by the planet in one revolution, मतलब प्लैनेट सन के अराउंड जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक रेवोल्यूशन में, वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द ऑर्बिट 2 पाई आर. 2 पाई आर इज़ द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, राइट? तो जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इट विल बी इक्वल टू द सर्कम्फरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट, एंड उसको क्या बोलेंगे हम, 2 पाई आर. ओके, आर क्या है इसमें, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द sun, and time taken is period of revolution t.
ओके, रिमेंबर दिस मच. आर हमेशा याद रखो, आर वी आर यूजिंग फॉर डिस्टेंस, टी वी आर यूजिंग फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड वी आर यूजिंग फॉर स्पीड. ओके, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस टर्म्स, अब जब फॉर्मूलाज देखोगे, अब जब सम्स देखोगे, एंड जो हमें एट लास्ट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलेगा, यू विल बी कन्फ्यूज्ड विद दैट, बिकॉज आपको नहीं पता कि स्पीड को किससे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे. सो सी, v इज़ इक्वल टू वी मतलब क्या है, स्पीड है, राइट. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. सेम थिंग, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसने, पैरामीटर ऑफ द सर्कल, राइट. जो भी प्लानट होते हैं दे कवर द डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ द ऑर्बिट, एंड वो क्या है, 2πr. तो वी रोट 2πr and the time taken is denoted by t. So we got the formula as v is equal to 2πr upon t, right. हमें क्या मिल गया, v is equal to 2πr upon t, right. Now see the formula which we got earlier, f is equal to mv square upon r, right. Now what we have to do is, यहाँ पे जो v का वी गॉट द फॉर्मूला एज 2πr अपॉन टी, तो हमें वहाँ पे m v के जगह पर लिखना है 2πr अपॉन टी, एंड यहाँ पे स्क्वायर है, राइट. एंड ये r बच गया, तो वी विल राइट इट एज r. ओके, यू कैन सी दिस क्लियरली. यहाँ पे 2πr अपॉन टी वी गॉट एज v, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. v स्क्वायर के जगह वी विल राइट दिस होल थिंग व्हाट वी गॉट. ठीक है, तो हो गया m, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन r. ओके, विच कैन बी रिटन एज, अभी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 इज 4, राइट. तो हो गया 4, देन m, एंड देन पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर अप r, ओके, अपॉन टी स्क्वायर. वाई टी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे होल ब्रैकेट में टी स्क्वायर है, राइट. तो टी स्क्वायर हो गया. सी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर वी गेट, सी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट. हमें v की वैल्यू क्या मिली है, 2πr अपॉन टी, तो v स्क्वायर है, राइट. तो ये स्क्वायर हो गया, एंड अपॉन r, दिस इज़ व्हाट वी गॉट, राइट. अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, वी विल गेट इट एज 4, ये m हो गया, m, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, r. अब समझो ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो फिर भी r स्क्वायर बच रहा है, राइट. तो वी विल राइट इट एज r स्क्वायर है, मतलब r इंटू आर क्या हो गया, r स्क्वायर, पर नीचे एक r है, तो ये एक r हम स्क्वायर और एक r कट कर देंगे तो सिर्फ एक r बचेगा, राइट. तो क्या हो गया, 4m पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर r अपॉन ये t, एंड ये स्क्वायर है, राइट. तो अपॉन t स्क्वायर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय आर स्क्वायर. तो व्हाट वी विल गेट, अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, इट मीन्स आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर जो है इट विल गेट कट, है ना, ये आर गया एंड ये आर गया. तो सी व्हाट यू हैव गॉट, यहाँ पे 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. r square, how come r square you got here, because you have multiplied and divided by r square on both the side, right. तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, राइट. अभी r क्यूब एंड t स्क्वायर कहाँ से आ गया, एज आई सेड यहाँ पे हम r स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो आपका 4m पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपको जो वैल्यू मिली है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट विथ आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे t है, राइट. सी यहाँ पे t स्क्वायर है, तो अपॉन आर स्क्वायर. तो व्हाट विल हैपन, ये हो जाएगा आर क्यूब, यू विल गेट द वैल्यू एज आर क्यूब. सी ये वैल्यू रहेगी,
4m पाई अपॉन टी स्क्वायर अपॉन जो भी आर स्क्वायर रहेगा वो, ठीक है। तो बट द वैल्यू वी विल गेट फ्रॉम दिस इज आर स्क्वायर, सी यहाँ पे आर एक है तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया R3 अपॉन नीचे क्या है टी स्क्वायर, एंड वी नोट टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हमने देखा था इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केपलर, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल गेट टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आपने क्या कर दिया के, ठीक है। तो सी द रिमेनिंग वैल्यू आई टोल्ड यू कि ये जो आधी वैल्यू है विच इज़ देयर 4m पाई स्क्वायर दैट विल रिमेन द सेम। आपने सिर्फ उसका आधा पार्ट ही लिया था एंड यू टुक इट एज के। अब आपको क्या मिलेगा f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ का आर स्क्वायर बचा था राइट, टी स्क्वायर तो हमने ले लिया, आर स्क्वायर बचा था तो आर स्क्वायर एंड दिस पार्ट विच यू टुक एज के यू विल राइट एज के, ठीक है। बट ये जो हमें वैल्यू मिली है 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर निकाल दो, बाकी जो वैल्यू है इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, thus Newton concluded that centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Inversely proportional it means what, आपको अभी यहाँ पे क्या मिला, f is equal to सारे वैल्यूज़ क्या हो गए, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, सिर्फ बचा क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। हमें यही पता चला ये वाले फॉर्मूले से, आफ्टर कंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स हमें पता चला f जो है इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आर क्यूब। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, द सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हुआ है वहाँ पे सारा चीज़ें। फर्स्ट आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है 2πr, टाइम टेकन इज t, राइट। एंड हमें ये भी फॉर्मूला पता है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो v के जगह हमने सारा ये वैल्यू पुट कर दिया एंड व्हाट वी डिड स्क्वायर निकाला उसका, देन वी डिड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग of r square on both the side, what we got the value as 4m r square into r square upon r square, and we got it as r cube upon t square. तो according to third law of Kepler we know कि t square upon r cube is equal to k, तो हमने वहाँ पे k डाल दिया, but the value we got later after making it a constant k वो भी एक constant value थी, and the thing that was left is f इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स और सर्कुलर जो मोशन है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, सी न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. तो यहाँ पे न्यूटन सर ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है एंड देन ही पोस्ट्यूलेटेड दिस इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर but it controls the universe and decides its future. Now you might be shocked with this sentence कि जो gravitational force है वो सबसे weak force है, but then too it is controlling the universe. gravitational force के ऊपर पूरा universe regulate कर रहा है, right? and it is also deciding our future, but it is the weakest force. Okay, this is possible because of the huge masses of the planets, stars and other constituents of the universe. Now why it has become possible for the gravitational force to control the universe? Because of the mass of the planet, star and other constituents present in the universe. Okay, see there is one example which is given is Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Suppose he is Mahendra and he is Virat. ये दोनों कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं. ओके, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg. तो जो महेंद्र है उसका वेट क्या है 75 kg
एंड जो विराट है उसका वेट कितना है 80 kg. ओके, वॉट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. अब मैंने आपको बताया था दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, राइट. तो यर यू विल हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ एक्टिंग बिटवीन देम. आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है, राइट, मासेस ऑफ बोथ ऑफ देम, एंड आपको डिस्टेंस दिया है. तो इफ़ यू इमेजिन यहाँ पे आपको m1 और m2 दिया है एंड डिस्टेंस दिया है, तो यू कैन यू फाइंड द फोर्स, राइट. अब हमने ये इससे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो अगर आपने गिवन फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज़ गिवन, यू कैन ऑटोमेटिकली जस्ट रिमेंबर कि आपको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, सी यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड रिमेंबर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये जो g की वैल्यू है इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगी. तो वेन एवर यू हैव टू टेक अप अ वैल्यू ऑफ g वेदर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट, आपको ये वैल्यू लर्न करके रखना है. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, तो सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स क्या हो गया, g which is gravitational constant, mass of both of them m1 m2 upon r square. तो यहाँ पे आपको पता है g की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट. मास ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ कितना है, महेंद्र का वेट इज़ 75 एंड विराट का वेट इज़ 80, राइट. एंड वॉट इज़ द डिस्टेंस विच दे आर कवरिंग इज़ 1 मीटर. उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर. तो आफ्टर यू कैलकुलेट दिस वैल्यू आपको आंसर क्या मिलेगा 4.002 इंटू 10⁻⁻7. नाउ यू माइट बी इमेजिनिंग कि ये वैल्यू कैसे आई, तो जस्ट अ मोमेंट वी विल जस्ट चेक विथ इट. ओके, सी यू डोंट हैव टू यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर योर पर्पस, यू नीड टू डू इट बाय योर हैंड itself. बट नाउ while teaching I am using this calculator to just show the answer which is given correct. Okay, see the value given is 6.67, right, 6.67 into 10⁻11, we will keep it like that, then we will multiply it with 75 and then 80. Okay, तो ये आपको वैल्यू क्या मिल गई, you got it as 40,020, right. 40,020 एंड अपॉन 1 स्क्वायर है तो दैट विल रिमेन 1 ओनली. तो अब 40020, राइट. जस्ट सी यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली, यू गॉट द वैल्यू एज 40020, राइट, 40020, राइट. एंड ऊपर वैल्यू क्या थी 10⁻⁻11, राइट. इसको अभी आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट पॉइंट डालना है आपको. तो यहाँ पे कितने पॉइंट आप डाल सकते हो 1 2 3 4. तो यहाँ पे 11 - 7 कितना होता है 4, राइट. बिकॉज आपने डेसिमल लिया है इसलिए क्या होगा, ये जो आपने 10⁻⁻11 4 डेसिमल नंबर के बाद लिया है, राइट. तो इसलिए आप वहाँ पे वो 10⁻⁻11 से 10⁻⁻7 हुआ है. ओके, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. 11 - 4 करना है. ओके, बिकॉज 4 डेसिमल के बाद आप 4 नंबर्स के बाद आप एक डेसिमल पॉइंट ले रहे हो, राइट. तो 11 - 4 कितना हो गया 7. तो इट बिकेम 10⁻⁻7 एंड बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग फोर्स यू विल राइट इट द यूनिट एज न्यूटन n. Okay, I hope you have understood this. So the gravitational force between Mahendra and Virat is 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन. आप जितना डेसिमल लोगे, अब सपोज आपने 4 के आगे भी डेसिमल ले लिया, आपने ये नंबर भी ले लिया यहाँ पे एंड यू आर राइटिंग योर 0, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 10⁻⁻6. ओके, अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको 0400020 and now you want a 0 here also, 1 2 3 4 5 6, right. तो यहाँ पे कितना कम हो जाएगा 6 कम हो जाएगा. तो 11 से 6 गया तो you will write it as 10⁻⁻5. okay, so this is how the decimal point is given. ठीक है. So this is a very small force. If the force of friction
between Mahendra and the bench on which he is sitting is 0. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अगर 0 है बेंच एंड महिंद्रा के बीच में, देन ही विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स विराट अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. अगर महेंद्र ने थोड़ा सा भी फोर्स यूज़ किया एंड इफ़ देर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या होगा? महेंद्र विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स विराट. Okay, and we can calculate his acceleration and velocity by using Newton's law of motion. अभी हमने क्या calculate किया? We just calculated the force. We can also calculate the acceleration and velocity using Newton's law. Okay, see, now second example is, in the above example, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, मतलब friction नहीं है bench पे, तो it means what? Mahendra विराट तक नहीं जा पाएगा, right? And starting with 0 velocity, what will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? तो 1 second के बाद महेंद्र की velocity, मतलब महेंद्र कितना दूर जाए, कितना पास जाएगा विराट के after 1 second. Okay, will this velocity change with time and how? Okay, तो just see, महेंद्र पे फोर्स कितना है? तो फोर्स ऑन महेंद्र F is equal to 4.002 into 10 raised to minus 7 Newton. We have just calculated it in the last example, right? महेंद्र का मास कितना दिया था? 75 kg, right? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन के, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन महेंद्र इज 75 kg, राइट? एक्सेलरेशन कितना है? उसका वेट एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल, राइट? तो 75 kg हो गया. Now A is equal to F upon M, right? तो just see, alpha is equal to what we have seen second law of motion में, कि जो force होता है is directly proportional to mass, right? तो जब हमें proportionality constant निकालनी होगी, तो what we will write? Force upon mass, right? फोर्स कितना है? वी कैलकुलेटेड द फोर्स एज 4.002 इंटू 10 raised to minus 7, राइट? दिस इज़ द फोर्स एंड मास कितना है उसका? 75. तो यू विल गेट द आंसर एज 5.34 इंटू 10 raised to minus 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर when you calculate this. Okay, if you want I'll calculate it. 4.002 divided by 7. See, 4.002 into, sorry, divide by 75. What answer did you got? 0.05336. What did you got? 0.005336. राइट, तो यहाँ पे क्या हो गया? अभी 10 raised to minus 7 था, नाउ इट बिकेम 10 raised to minus 9. वाई? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, वॉज इट द सेम नंबर? सी, इट वॉज 0.05336. तो कितना नंबर है ये? 1 2 3 4 5 नंबर है, राइट? तो what you can write here as 7 है, 2 ऐड हुआ है और 2 numbers, right? तो you will write it as 5.34 into 10 raised to minus 9. See, you can write it on your own values also, because आप कौन सा कितना डेसिमल ले रहे हो वो पता नहीं है, right? तो यहाँ पे अगर if you are getting the answer as 53.4 into 10 raised to minus 8, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके. ठीक है, यहाँ पे आप ये 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 8, आपको जो लिखना है लिखो, बट द आंसर शुड बी, अगर आंसर आ रहा है 534 एंड अगर आपने लिखा है 5.34, किसी ने लिखा है 0.534, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट द नंबर विच यू आर टेकिंग ऑन raised to 10, दैट शुड बी राइट. ओके, सो यू कैन डू इट yourself also. Okay, see, ये वैल्यू मिल गया अभी हमें. Now using Newton's first equation we can calculate Mahendra's velocity after 1 second. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग महिंद्रा का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी इज़ व्हाट? स्पीड हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं 1 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, राइट?
एंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ओके, u is what, initial velocity, a is acceleration and t is time. Okay, now see, as Mahendra is sitting on a bench, his initial velocity is 0. उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज ही इज सिटिंग राइट, इसलिए उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0. u इज इक्वल टू विल बी 0. तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी राइट. तो u क्या होगा यहाँ पे 0. a क्या होगा, a हमें पता है एक्सेलरेशन, अभी हमने कैलकुलेट किया 5.34 इंटू 10⁻⁻⁹ राइट. एंड टाइम कितना है उसका, 1 मीटर पर सेकेंड ही विल बी मूविंग राइट. तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 5.34 इंटू 10⁻⁹ इट सेल्फ. एंड बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया एंड देन हाउ वी founded this velocity. Okay, now Mahindra velocity after 1 second will be 5.34 into 10⁻⁹ meter per second. Okay, now this is an extremely small velocity and the velocity will increase with time because of the acceleration. जो velocity है वो time के साथ increase होगी because he will be accelerating. Okay, the acceleration will also not remain constant because as Mahindra moves towards Virat, the distance between them will decrease. Acceleration constant नहीं रहेगा, it will change because Mahindra will move towards Virat right. तो यहाँ पे जो उनका बीच का distance है that will decrease because of that, causing an increase in the gravitational force. उनका जो distance जब decrease होगा तो the gravitational force will increase and the acceleration and thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा राइट. ये हमने पहले ही देखा था कि जब सपोज दिस इज़ एन एलिप्स, यहाँ पे सन का एक पोजीशन है एंड जब प्लैनेट सन के पास होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा. पर जब वो सन से दूर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा. द सेम थिंग विल टेक प्लेस हियर ऑल्सो. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू एग्जाम्पल्स, हाउ यू विल यूज द फॉर्मूलाज एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यूज. ओके, नाउ सी low and high tides. You must be knowing about the high and low tides that occur regularly in the sea. हम न्यूज़ में देखते हैं आज हाई टाइड है, people are being stopped from going at seas right. तो ये आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में राइट. The level of sea water at any given location along the seashore increases and decreases twice a day at regular interval. तो जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ होता है एंड डिक्रीज़ भी होता है एक रेगुलर इंटरवल पे. ओके, एंड द हाई एंड लो टाइड्स अकर एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस. यह हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होता है हमेशा. ओके, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून. तो जो वाटर का लेवल होता है सी के अंदर वो चेंज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून अफेक्ट करता है वाटर पे. ठीक है, द फोर्स विच द मून गिव ऑन दी वाटर बिकॉज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कि जो लेवल है वाटर का वो चेंज होता रहता है. ओके, नाउ वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट पुल्ड टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट द प्लेस. तो हाई टाइड कब आती है, जब वाटर जो है मून डायरेक्टली वाटर को जब पुल करता है अपने तरफ तो उस टाइम क्या होता है, वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड. ओके, एट 2 places on earth at 90 degree from the place of high tide the level of water is minimum and low tides occur there as shown in figure 1.6. तो if you can see here, ये जो figure है it is indicating low tide. Okay, and this is the figure which is indicating high tide. Okay, high tide कब आएगा, जब मून अपनी तरफ वाटर को पुल करेगा, उस वक्त क्या आता है, लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड बिकॉज ऑफ विच हाई टाइड अकर्स. ओके, सी, Earth's gravitational force
Will the velocity of stone thrown vertically upward remain constant or will it change with time? अब सपोज आपने एक स्टोन को थ्रो किया है ऊपर स्काई की तरफ, तो वो वर्टिकली अपवर्ड ही रहेगा या वो नीचे भी आएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या टाइम के साथ? एंड अगर वो चेंज होगी तो हाउ इट विल चेंज, एंड वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम? द सेम क्वेश्चन विच द न्यूटन ऑब्जर्व्ड विद द एप्पल. ठीक है, आपको यहाँ पे सेम केस यूज़ करना है. ठीक है, वाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टन हाइट एंड वॉट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन? तो एप्पल जब नीचे गिरा था वो भी एक सेंट्रल ऑफ द अर्थ में, तो वहाँ पे न्यूटन को क्या आंसर मिला था? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब जब स्टोन को थ्रो करोगे ऊपर एंड वो नीचे आएगा तो यहाँ पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा होगा, राइट? तो सी, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ. अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर. मास कहाँ पे अर्थ का? पूरा उसके सेंटर के पास है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट का कहाँ पे जाएगा? इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज जो मास अर्थ का मास है इट इज़ इन दी सेंटर. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ. एंड यही रीज़न है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर थ्रो करोगे तो इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ, बिकॉज अर्थ जो है वो क्या करता है? it is attracting every other object in the universe by the gravitational force. Okay, similarly, when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduces its velocity. है ना, आपने देखा होगा, आपने स्टोन ऊपर फेंका है तो वो वहाँ पे रहता नहीं है, इट स्लोली कम्स डाउन बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल ट्राई टू पुल इट डाउन एंड इट विल रिड्यूस इट्स वेलोसिटी. ओके, एंड ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड पुल क्या होगा? द वेलोसिटी विल बिकम ज़ीरो, वो नीचे गिर जाएगा. एंड जब वो नीचे आएगा तो इट विल जस्ट स्टॉप एट अ पोजिशन, फिर वो यहाँ से वहाँ चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो जब वो नीचे आ जाएगा तो इट्स वेलोसिटी विल बिकम ज़ीरो. Okay, and the pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downward towards the center of the earth under its influence. I hope you have understood the concept. यहाँ पे स्टोन आप ऊपर फेंकते हो, नीचे क्यों आ जाता है? उसकी वेलोसिटी, जब वो नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इट बिकम ज़ीरो. एंड वो नीचे क्यों आ जाता है? इट इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, this is the reason. Okay, I hope you have understood the earth's gravitational force. Now see, examples are given. Calculate the gravitational force due to earth on Mahendra in the earlier example. Mahendra का weight कितना था? 75 and विराट का कितना था? 65 और 60 something, right? तो just see, महेंद्र के ऊपर हमें gravitational force को calculate करना है. तो मास ऑफ द अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg. ओके, दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. 6 × 10⁻24 kg. रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी होती है? 6.4 × 10⁻6 मीटर. महेंद्र का मास कितना दिया हुआ है? 75 kg. राइट, नाउ यू शुड बी नोइंग द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, और एल्स इट कैन बी गिवन इन योर लाइक प्रॉब्लम्स इटसेल्फ कि ये अर्थ का मास इतना होता है एंड इसका मास इतना होता है. यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट. ओके, एंड हमें पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. राइट, नाउ यूजिंग द फोर्स लॉ, gravitational force on Mahendra due to earth is given by, now the force is 1.83 × 10⁻9 times larger than the gravitational force between Mahendra and Virat. तो यहाँ पे फोर्स कितना ज़्यादा बड़ा है? 1.83 × 10⁻9 टाइम्स बड़ा है. ओके, तो सी, वी विल बी कैलकुलेटिंग द फोर्स विद द सेम फॉर्मूला, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, नाउ G का वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11. m1 हमें पता है कितना है? 6 × 10⁻24 and m2 is what? 75, weight of Mahendra, right? And r square is what? 6.4 × 10⁻6. तो after calculating all this we got the value as
733 न्यूटन. वाई न्यूटन? बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग फोर्स, एंड फोर्स जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसका जो यूनिट होता है इट इज़ रिटन इन न्यूटन, right? So I hope you have understood. You just have to use the formula and you have to calculate the force. Remember, force का formula is F is equal to G m1 m2 upon r square. Okay, now second example is, starting from rest, what will be the Mahindra's velocity after 1 second? अब रेस्ट पोजीशन मतलब वो मूव नहीं करेगा, इट इज़ नॉट मूविंग, वो एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे है दोनों. ओके, वो वाले जगह से अगर महिंद्रा का वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद इज़ फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट महिंद्राज वेलोसिटी, राइट? तो यहाँ पे यू क्या है, रेस्ट बोला है, इट मीन्स इट इज़ एट रेस्ट, तो यू विल बी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. ओके, फोर्स कितना बोला गया है, वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्स, राइट? फोर्स इज इक्वल टू 733 न्यूटन, एंड महिंद्रा का मास हमें पता है 75 kg, राइट? टाइम क्या है, 1 सेकेंड का टाइम बोला है, राइट? आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ महिंद्राज एक्सेलरेशन, वी नो द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज F अपॉन m, राइट? F अपॉन m, तो F एंड m हमें पता है, तो वी गॉट द वैल्यू, वी विल गेट द वैल्यू, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया, v इज इक्वल टू u प्लस AT, राइट? एंड u क्या है, 0. a हमने कैलकुलेट किया तो हमें क्या मिला, 9.77. इसको जब आप डिवाइड करोगे 733 अपॉन 75, वेट आई विल शो यू. 733 डिवाइड बाय 75, 733 डिवाइड बाय 75, you will get the value as 9.773, right? तो जस्ट सी, यहाँ पे हमें मिला 9.77, एंड 1 इज़ वॉट, आफ्टर 1 सेकेंड है तो 1 इंटू 1 किया, तो द वैल्यू वी विल गेट इट, द वेलोसिटी वी विल गेट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड. Okay, and the value, the velocity which you are getting, it will be 1.83 into 10 raised to minus 9 times Mahindra's velocity. Okay, I hope you are clear कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है सम्स को यूजिंग द फॉर्मूलाज. ओके, यू विल बी गिवन विद सम पार्ट एंड सम यू नीड टू नो कि ये जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस यू नीड टू नो द मास ऑफ द अर्थ. ओके, दिस आर द इसेंशियल थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर बिकॉज दे विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेट, ओके, विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक आफ्टर योर एक्सरसाइज. ठीक है. Now see, thus if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attract the earth towards itself with the same force. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना force अर्थ एप्पल के ऊपर अप्लाई कर रहा है, द सेम फोर्स द एप्पल इज़ अप्लाइंग ऑन द अर्थ, दोनों की तरफ से इक्वल फोर्स आ रहा है. ओके, एंड वाई देन डज द एप्पल फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बट द अर्थ डजंट मूव टूवर्ड्स द एप्पल. अभी यहाँ पे हमने क्या बोला कि दोनों जो है वो इक्वल फोर्स दे रहे हैं एक दूसरे की तरफ, पर सिर्फ यहाँ पे एप्पल ही क्यों फॉल कर रहा है, वाई द अर्थ इज़ नॉट फॉलिंग डाउन और वाई द अर्थ इज़ नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन. तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून. तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का होगा तो इट विल ऑल्सो एक्ट ऑन द मून, एंड जिसके वजह से क्या होगा, इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. एंड सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम एस्केप करते हैं अर्थ के अंदर, दे ऑल्सो स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. ओके, एंड द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ, and then the earth will attract them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall. Why? Now we have seen this earlier also कि earth और सारे planets नीचे क्यों नहीं गिरते हैं, because of the velocity. Okay, this is because of the velocity of the moon and the satellite along their orbit. अगर velocity नहीं होती तो क्या होता, सारे planet जो है वो अर्थ के ऊपर गिर जाते, जैसे एप्पल गिर जाता है अर्थ के ऊपर. ओके, तो velocity एक ऐसी चीज़ है जिसने सारे planets को ऊपर होल्ड करके रखा है. ओके, एंड दे आर नॉट फॉलिंग डाउन. See, next is Earth's gravitational acceleration. Now अभी हम velocity और acceleration calculate कर रहे थे ना. What will be the Earth's gravitational acceleration? The Earth exerts gravitational force
ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। तो अर्थ किस पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी? जो भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास होगा उसके ऊपर द अर्थ विल एक्सर्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स एक्ट करता है बॉडी के ऊपर इट विल रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। तो जब भी आपके बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा एक्सेलरेशन विल टेक प्लेस। ओके, दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। तो अभी समझो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल लेट द एक्सेलरेशन ऑल्सो। ओके, एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट? इसको ही क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। कैपिटल जी से भी डिनोट यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट? स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स व्हाट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन distance and speed. Okay, as the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of the acceleration is also directed towards the center of the earth. Now what does this sentence means? अभी हमने देखा था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया the apple is falling on the ground. he concluded कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ में। फिर क्वेश्चन आया कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ही क्यों फॉल हो रहा है? वाई इट इज़ नॉट गोइंग इन दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन? तो वहाँ पे क्या पता चला, जो अर्थ का मास है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, एंड बिकॉज ऑफ इट जो भी ऑब्जेक्ट होता है दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ओके, सी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ and variation in the value of g we will be studying. ठीक है, see we can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at distance r from the center of the earth, and the law of gravitation gives, now हमें पता है, हमने प्रोडक्ट ऑफ मासेस लिया था अपन आर स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे मासेस जो है वो एक कैपिटल एम एंड एक स्मॉल एम होगा, राइट? एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम क्या है? इट इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ एफ विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में हम लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू एम जी। वाई? बिकॉज जो जी होता है, सी यहाँ पे दिया है एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट? एंड देन ये थर्ड इक्वेशन हो गया। फोर्थ इक्वेशन में हम बोल रहे हैं एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हमें क्या पता चला कि एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी आ गया, राइट? हमने ये पहले ही देखा था, मास इनटू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे अभी, सी इसलिए एफ के जगह वी विल राइट इट एज एम जी। ठीक है, एफ और एम जी इक्वल है, तो हम एम जी के जगह क्या लिख देंगे, ये जो हमें वैल्यू ऊपर मिली है वो जी एम अपॉन आर स्क्वेयर इज़ द वैल्यू ऑफ एम जी। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, एम एंड एम कैन गेट कैंसिल, ये वाला एम एंड ये एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जी विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज़ मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज़ द फिफ्थ इक्वेशन विच यू विल गेट। सिक्स्थ इक्वेशन में व्हेन यू विल सी, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आफ्टर द फिफ्थ इक्वेशन, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे जो स्मॉल आर है इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द अर्थ से विल बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, एंड दस द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो आपने क्या किया यहाँ पे, जो फिफ्थ इक्वेशन है
डिस्टेंस जो है आपने इक्वल कर दिया टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर. तो यहाँ पे सिर्फ वही डिफरेंस हो गया. ओके, अब हम क्या करेंगे, वी गॉट द वैल्यू एज g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. राइट, अभी हमें g का वैल्यू तो पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. m हमें पता है मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻⁻24. राइट, एंड वी नो द वैल्यू, रेडियस भी पता है हमें अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 एंड आर स्क्वायर है इसलिए वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सी देयर आर टू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर. एक तो आपको पता होना चाहिए अर्थ का मास कितना है एंड अर्थ का रेडियस कितना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल. वरना आप सोचते ही बैठे रहोगे कि मास कितना है अर्थ का, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, वी से किसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से किसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से किसको डिनोट करते हैं. तो यू शुड बी थरो विथ ऑल दिस टर्म्स. ओके, and if you are thorough with all the terms you will clearly understand the concept also and how to solve the sum also. Okay, and after calculating this हमें क्या मिला, acceleration due to gravity we got it as 9.77 meter per second square. Okay, now this acceleration depends only on mass m and radius r of the earth. ठीक है, ये एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और रेडियस ऑफ द अर्थ पे. एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन द अर्थ इज़ द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. तो जो ग्रेविटी होगी, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इट विल बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, now there are some variations in the value of g which we will study in the next lecture. So for today I hope you have understood all the concepts which I have covered. Okay, thank you everyone.